Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is for class 4. Subject is mathematics. Exercise 2D. This exercise has been given at pages 33 and 34. Students, after watching this lesson, you will be able to know about prime factorization using division method. Solve question number 1, 2, 3 and question number 6 of exercise 2. तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखी और फैक्टर ट्रीज भी ड्रा करना सीखे. बट टुडे वी लर्न प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग डिवीजन मेथड. आज हम डिवीजन मेथड को यूज करते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे. तो लेट्स सी द एग्जांपल्स. तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखी और फैक्टर ट्रीज भी ड्रा करना सीखे. बट टुडे वी लर्न प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग डिवीजन मेथड. आज हम डिवीजन मेथड को यूज करते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे. तो लेट्स सी द एग्जांपल्स. फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स using division method, and we have a number 36. So how do we start? Yes, first we draw a table and write 36 here. Now we will find the smallest possible prime number which exactly divides 36 without any remainder. As you can see, 36 is an even number. So we can start division by 2. We write 2 here and we will write the quotient here on the right, on the downside. So 2 1s are 2. 1 6 के साथ शिफ्ट हो गया तो ये 16 बन गया. अब 2 8s are 16. Here we got the quotient as 18, and now 18 is an even number, so we divide by 2 again. Yes, 2 9s are 18. Here we got the quotient as 9, and 9 is an odd number, so we divide by 3. 3 3s are 9. Now we got the quotient 3. 3 is an odd number, so we divide by 3 again. Yes, 3 1s are 3. अब लास्ट में हमारे पास 1 आ गया तो इसका मतलब कि 36 के प्राइम फैक्टर्स पूरे हो गए. अब हम मजीद प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते. So the factors of 36 are 2, 2, 3 and 3. Okay. Let's see another example. Here we have a number 45. तो सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे. 45 को यहाँ लिखेंगे. 45 एक ऑड नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसे सबसे छोटे ऑड नंबर 3 से डिवाइड करके देखते हैं. तो यहाँ 3 यहाँ लिखेंगे. 3 1s are 3. 1 5 के साथ शिफ्ट हो गया तो ये 15 बन गया. अब 3 5s are 15, तो ये पूरा डिवाइड हो गया. अब हमारे पास क्वोशंट 15 आ गया जो कि एक ऑड नंबर है, सो वी डिवाइड बाय 3 अगेन. 3 5s are 15. अब हमारे पास क्वोशंट 5 है और 5 भी एक ऑड नंबर है, तो 5 को स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा. 0 नहीं आएगा, तो यानी पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे 3 से डिवाइड नहीं करेंगे. वी डिवाइड बाय 5. 5 1s are 5.
तो अब यहाँ हमारे पास 1 आ गया, इसका मतलब कि 45 के प्राइम फैक्टर्स पूरे हो गए, यानी आगे हम मज़ीद प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 आर 2, 3, 3 and 5. Okay. Let's move our exercise. Question number 6. Find prime factors of these numbers using division method. Your A part is 84. First we'll draw a table and write 84 here. Now we will find the smallest possible prime number which exactly divides 84 without any remainder. As you can see, 84 is an even number. So we can start division by 2. Here we write 2 and we will write the quotient here on the downside. Okay. Now 2 4s are 8 and 2 2s are 4. Here we got the quotient as 42. And now 42 is an even number. So we divide by 2 again. Yes, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. Now we got the quotient 21. And 21 is an odd number. So we divide by 3. Yes, 3 7s are 21. Now we got the quotient 7. 7 is a prime number, and students, as you know that prime numbers has only 2 factors, that is 1 and the number itself. Okay, so we divide 7 by 7. Yes, 7 1s are 7. Now we got the quotient 1. तो it means कि अब हम 84 की मज़ीद प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते. So the prime factors of 84 are 2, 2, 3 and 7. Okay. Let's see the C part of question number 6. 333. First we draw the table and write 333 here. Now we cannot divide 333 by 2 because 333 is an odd number. Now we take this number for 3. Add all the digits of 333. 3 plus 3 plus 3 equal 9, and 9 is divisible by 3. So 333 is divisible by 3. Let's see. 3 1s are 3, 3 1s are 3 and 3 1s are 3. Now we got the quotient 111. And 111 is also an odd number. So we cannot divide by 2. Now we check this number for 3. यानी ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसे 3 के लिए चेक करके देखते हैं. तो 111 के डिजिट्स को ऐड करते हैं. 1 plus 1 plus 1 equal 3 and 3 is divisible by 3. So 111 is divisible by 3. Let's see. 3 3s are 9. 2 1 के साथ शिफ्ट हो गया तो ये 21 बन गया. अब 3 7s are 21. Okay. Now we got the quotient 37. And you know students, 37 is a prime number. Prime number has only 2 factors, that is 1 and the number itself. So we divide 37 by 37. Yes, 37 1s are 37. Now we got the quotient 1. तो इसका मतलब कि 337 के प्राइम फैक्टर्स पूरे हो गए.
So the prime factors of 333 are 3, 3 and 37. Okay. Let's see another part of question number 6. E part is 520. First we draw the table and write 520 here. Now 520 is an even number because 0 is at ones place and it can be divided by 2. Let's see. 2 2s are 4. 1 2 के साथ शिफ्ट हो गया तो ये 12 बन गया. अब 2 6 are 12 and 2 zeros are 0. Now we got the question 260 and 260 is also an even number because 0 is at ones place. So it can be divided by 2 again. Yes. 2 1s are 2, 2 3s are 6 and 2 zeros are 0. Now we got the quotient 130 and 130 is also an even number. So we divide by 2 again. Yes. 2 6 are 12. 1 0 के साथ शिफ्ट हो गया तो ये 10 बन गया. अब 2 5 are 10 तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास 65. According to the rule of divisibility, here 5 at unit place, so we divide by 5. 5 1s are 5. 1 5 के साथ शिफ्ट हो गया तो ये 15 बन गया. तो 5 3s are 15. Now we got the quotient 13. Yes, which is a prime number, and we know prime number has only two factors, that is 1 and the number itself. So we divide 13 by 13. Yes, 13 1s are 13. Now we got the quotient 1. It means कि 520 के factors पूरे हो गए. So the prime factors of 520 are 2, 2, 2, 5 and 13. Okay. Let's see question number 1. Fill in the blanks. Here a part is 2, 3, 5 are prime factors of dash. 2, 3 और 5 किस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं? तो इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे. जो नंबर आएगा उस नंबर के ये प्राइम फैक्टर्स होंगे. ओके, लेट्स सी. 2 3s are 6 and 6 5s are 30. Okay, 2 3 and 5 are prime factors of 30. Okay, B part is the prime factors of 41 are 1 and 41 because you know prime factors has only two factors, that is 1 and the number itself. Okay, C part is there are dash prime factors of 58. यह हमने बताना है कि 58 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं. तो 58 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमें पता चला कि 58 के 2 प्राइम फैक्टर्स हैं. ओके, देयर आर 2 prime factors of 58. And now D part is the prime factor of 10 are 2 and 5 because 2 5s are 10. Okay, next E part is prime factor can never be a dash number. ये आप इस लेसन में पढ़ चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैन नेवर बी अ कंपोजिट नंबर. सो वी राइट हियर कंपोजिट. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. हियर ए पार्ट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर कम्प्लीटली. एक नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो उस पर पूरे डिवाइड होते हैं. येस, इट्स ट्रू. बी पार्ट इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 आर 2, 3, 5, 5 and 10.
कि 100 के प्राइम फैक्टर्स ये हैं। इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर तो 100 आ गया तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, और अगर 100 नहीं आया तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो लेट्स सी, 2 3s are 6, 6 5s are 30, 30 5s are 150, and 150 10s are 1500। तो इसका मतलब कि ये फॉल्स है, ये 100 के प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं। सी पार्ट इज अ फैक्टर ट्री इज़ यूज्ड टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स। के प्राइम फैक्टर्स के लिए हम फैक्टर ट्री यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो येस इट्स ट्रू। डी पार्ट इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, यानी किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स उसी के प्राइम नंबर भी होते हैं। येस इट्स ट्रू। नेक्स्ट ई पार्ट इज 2 इज़ द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 6, कि 6 का सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता है 2। इट्स फॉल्स बिकॉज 6 हैज़ 2 प्राइम फैक्टर्स, 2 and 3, because 2 3s are 6. Therefore, it's a false statement. Okay. 3. Select the correct answer from the given options. Here A part is 3, 3, 3 and 5 are prime factors of ये प्राइम फैक्टर्स हमें दिए गए हैं, और 4 ऑप्शंस में से हमने सेलेक्ट करना है कि इनमें से किस नंबर के ये प्राइम फैक्टर्स हैं। इसके लिए हम इन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कौन सा नंबर आता है। तो 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 5s are 135। तो इट मीन्स कि ये 135 के प्राइम फैक्टर्स हैं। ओके। बी पार्ट इज़ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 110 आर, के 110 के प्राइम फैक्टर्स इन 4 ऑप्शंस में से हमें ढूंढने हैं कि कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 5 and 11, 5 11s are 55, इसका मतलब कि ये 110 के प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं। नेक्स्ट 2 5 and 11 है, तो 2 5s are 10 and 10 11s are 110। इट मीन्स के 2 5 and 11 110 के प्राइम फैक्टर्स हैं। इट्स द करेक्ट ऑप्शन। ओके। सी पार्ट इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 आर 2 5 and 50 के प्राइम फैक्टर्स एक तो 2 है, एक 5 है, और तीसरा नंबर क्या होगा, इसके लिए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 5s are 10, तो 10 को अब किस नंबर में से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 आएगा। यस 5 से 10 5s are 50। इट मीन्स के 5 इसका करेक्ट ऑप्शन है। डी पार्ट इज द प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज, यस अ प्राइम नंबर, के एक प्राइम फैक्टर हमेशा एक प्राइम नंबर होता है। ओके। ई पार्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग द नंबर इनटू 2 पार्ट्स, फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, मल्टीप्लाइंग द नंबर विद प्राइम नंबर्स, या फिर ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। यस, ये आपने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। ओके, इट्स द करेक्ट ऑप्शन। नाउ योर होमवर्क इज do questions 1, 2 and 3 in book at page 33 and 34, and do practice question number 6 of exercise 2D in rough notebook, and then rewrite them in your neat notebook. Okay, Allah Hafiz.